Morning, good morning, and welcome to this lecture of digital electronics, and in which we were expecting to study about the some of the simplifications of digital circuits. That is actually KMAPs and all. So that is supposed to be the last topic which is left of our syllabus of RTM Nagpur University. So let us start, and let me share my screen on that. So yeah, yes. And this is my screen. Hopefully, yeah. So this is my screen. I guess my presentation is visible to you, right? So let me start with this. Okay, perfect. So yeah, today we are going to study. Let me introduce myself. Myself, Dr. N.D. Mishra, Head and Associate Professor, Department of Electronics, Sri Mathura Das Mohta College of Science. And yeah, today we are going to study about Karnaugh map and its simplification, right? So the simplification of Karnaugh maps, that is what we are expecting to study today. Up till now, we have studied, say, how to design digital circuits by using gates, by using some of the Boolean algebra. So if you don't remember, go through my YouTube channel and watch those videos of how we have designed some of the circuits using Boolean algebra, right? Today, since it becomes very difficult to solve complicated circuits, so we have this another say another way out of solving those digital circuits, and then we can implement those circuits, simplify those circuits, and we can implement those circuits, right? And method which is being utilized is called as Karnaugh maps. Now, what are Karnaugh maps? That is what we need to study today. So these are some of the contents that we are expecting to complete today. Circuit optimization, as I told you, that we are expected to reduce the circuit, and we are by reducing the circuit, which directly implies that we are going to reduce the cost, right? Now we have some more sort of simplifications. Those simplifications are Boolean function simplification that we have already studied, and then we'll start with this introduction of K maps, which we call it as Karnaugh map for 2 variables, 3 variables, and 4 variables respectively. And we might study one of the application of those things, right? So how to reduce those things. Let us begin. So circuit optimization. Now, what is circuit optimization? Actually, this is the simplest implementation of a given function. So a function is given. Function means, say, we have given some equation, and according to that, we require some output to be high and some for some inputs, and for other inputs it should be low, right? So we are using that sort of function, that sort of equation, right? That is to be realized, or that say equation is to be implemented or simplified, right? So for that we require different types of methods. So for that we have the formal approach of to simplify that is by using the Boolean algebra or the algorithm, right? So we are having these sorts, and the main intention of doing that is to say reduce the cost, right? So as you evaluate, as you simplify the circuits, then automatically the cost is being reduced, because we will be using the less number of gates in the, right? So this is what we have already studied, some of the optimization method which requires Boolean algebra, Boolean equations to reduce those equations, right? So we have already completed this. Now, what are K-maps? Now, K-maps is actually the collection of squares. So we are going to have a table-like of a structure, and depending on the variables, we will be putting some of the variables into it, right? So that is called as a K-map. So each square will represent its minimum mean term, and the collection of the squares is the graphical representation of Boolean functions, right? Now we have to solve by using some of the methods. Now adjacent squares differ in value of one variable, so we don't go in the adjacent square. Alternative algebraic expressions for the same functions are derived by recognizing patterns of the square. So we'll be
reducing those equations, and accordingly will be making the equation. The K-map can be viewed as a reorganized version of a truth table. So whatever we are writing in a truth table, that is the same we are going to put it in that type of a table. Okay, so that is the main application of this Karnaugh map. Now these Karnaugh maps can be written like this. So this is what I was expecting to tell you, that uh, we are having a function. This function is summation of m0 and m1, m0 and m1, where this function is nothing but the function of x and y. If we are expecting to have two variables, so we'll be putting those two variables like this. So we'll be having these two variables in these four squares, and the value of these four squares will be like this. So this is x complement and y complement. In some say methods, we will be writing a or b, right? So there might be two variables like a, b, or we are taking it as x and y. So this block contains x complement, y complement, which is nothing but x0 and y is also 0. Then we'll be having this as the first. So we'll call this as 0. So if x and y are 0, 0, then this is 0. X complement y means this is 1, right? Then this is x, y complement. This is actually 2. So this is that truth table that we are expected to write. And lastly, we'll have xy, means both x and y are 1. Now, remember here, whenever we write a complement, implies that it is 0. Wherever we are not writing it as a complement, then consider it as 1. As you can see over here, both are complemented. So x complement and y complement. I guess you are able to see this screen. So x complement and y complement means both are 0. So this y is also 0 and x is also 0. Right? So this will come when this x and y is 0. Right? So initially we are trying to locate the terms actually, right? And then we will put the values over there. So the second one is x complement y, means y is equal to 1 and x equal to 0. So this comes under this row, right? Similarly, when we start from here, so here we will be having x, y complement. This implies that x is 1 and y is 0. So it will come under this column and this row, right? And lastly, we will have this xy. So xy means both are 1. So 1, 1 is over here. So we have to put the values accordingly as per this table. Now, as if you are able to remember, we have written this as 0, 0 is 0, 0, 1 is 1, 1, 0 is 2, and 1, 1 is 3. So we can put that numbers also. So this number is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. If you put numbers, then it is very easy to understand. So 0, 1, 2, and 3, right? Now, as you are able to see in this equation, that f should be the summation of m0, m1, and that is equal to x complement y and x complement y complement, which intends to show that x complement y should be 1 and x complement y complement should also be equal to 1. Now we can write this in a truth table, that is, hello, yeah. So सर इसका ये ट्रूथ टेबल का आउटपुट हाँ बेटा, ये हम लोगों ने फंक्शन अलग से डिजाइन किया है. ये फंक्शन किसी गेट का नहीं है, राइट? अब मैं जो गेट हम लोगों ने अभी तक के पढ़े थे, उनका ट्रूथ टेबल हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा बिकॉज ऑफ द देयर क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाया. बराबर है. अब हम लोग चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से ट्रूथ टेबल डिजाइन करें और उसके बाद सर्किट डिजाइन करें, राइट? तो ये ट्रूथ टेबल किसी गेट का नहीं है. ये फंक्शन, ये इक्वेशन जो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो फंक्शन कैसे दिया है? फंक्शन दिया है समेशन ऑफ m0 m1, या ये दो वेरिएबल्स x कॉम्प्लीमेंट y और x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब ये होता है कि जब ये x कॉम्प्लीमेंट y है, मतलब x 0 है और y 1 है, तब ये हायर है. या x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट मतलब ये दोनों भी जब 0, 0 है तब ये 1 रहेगा. तो आप यहाँ ट्रूथ टेबल में देखो, ये दोनों फंक्शन, ये दोनों 0, 0 है, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये दोनों 0, 0 जब है तब ये फंक्शन का आउटपुट 1 है, राइट? वैसा ही ये सेकंड फंक्शन है x कॉम्प्लीमेंट y, मतलब x 0 है और y जो है वो 1 है.
तो ये जो कॉम्बिनेशन है x0 और y0, तब ये 1 रहेगा। हम लोग यहाँ पर वॉइस सिर्फ ब्रेक हो रही आवाज ब्रेक हो रही क्या? हाँ वही तो पूछ रहा था, मुझे बताते रहना। हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? है। यस सभी को हो रहा है कि आप ही को हो रहा है? हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, ओके, बीच बीच तो में अभी। सभी का हो रहा है ब्रेक की सिर्फ तुम्हारा ही हो रहा है? ये पूछ रहा था। हेलो, हाँ अभी आ Yes, रहा है आवाज? sir. हाँ बेटा, तो Yes, हेलो, sir. अभी आ रही है आवाज क्लियर? हेलो, यस सर। चलो चलो ठीक है। सो या सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, ये जो फंक्शन हम लोगों ने इक्वेशन या क्वेश्चन में हमको मिला है, उसके हिसाब से हम लोग इसको ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो x कॉम्प्लीमेंट y जो है, इसका मतलब होता है जब x 0 है और y जो है वो 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये सेकेंड टर्म में दिख रहा है आपको ट्रुथ टेबल में, यानी x 0 है और y 1 है। इस इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर वही टर्म्स हम लोग रखेंगे जिनका आउटपुट 1 एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ 1 रखा। दूसरा वाला जो टर्म है वो है x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, राइट, यानी दोनों के दोनों जब 0 रहेंगे तब 1 रहेगा। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है, ये जो ट्रुथ टेबल बन रहा है, ये ट्रुथ टेबल कैसा बन रहा है कि हमको जैसा डिजायर्ड है हमने वैसा फंक्शन उसमें बनाने की कोशिश की, राइट। और इसके हिसाब से हमारे को ये ट्रुथ टेबल मिला है, जब x और y 0 0 है तब ये 1 होना चाहिए, जब x कॉम्प्लीमेंट और y मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 है तब भी 1 होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखे नहीं है, इसका मतलब उन टर्म्स में वो 0 0 होना चाहिए, राइट। तो अब ये जो फंक्शन, ये जो हमको मिला हुआ है 1, ये हम लोग ये वाले के मैप में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ 1 1 और इसको पुट करूंगा 1 0। रिमेंबर MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगा, ये वाला x है यहाँ पर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बिट रहेगा वो यहाँ इस साइड रहेगा, और LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगा दैट इज y, ये हमारा राइट हैंड साइड में ऊपर रहेगा, राइट। यहाँ पर राइट हैंड साइड में रहता है और यहाँ पर ऊपर में रहता है। और इसका नंबर सिस्टम्स में अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी 1 2 और 3, राइट। अब जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया है, ये 2 वेरिएबल्स के लिए कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसीलिए हम लोग उसके ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे। सो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब हम लोगों ने सिर्फ वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बारे में ही सोचा, इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम लोग आने वाले इसमें देखेंगे, राइट। अब ये एक और मैप दिया हुआ है फिर से, राइट। सो ये दूसरा मैप दिया है जब जहां पर हमको फंक्शन वेरिएबल जो दी है वो a और b के नाम से दी है, रिमेंबर दिस। सो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, राइट, वैल्यूज वैसे ही रहेगी। सो a और b, a इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और b इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट, ये समझ लेना। सो 0 1 इस फंक्शन के हिसाब से हम लोगों की वैल्यू होगी a b कॉम्प्लीमेंट, तो ये a b कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा। दूसरा है a कॉम्प्लीमेंट b, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। जहां 1 होते हैं वही के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, राइट। ये दूसरा फंक्शन और एक दिया हुआ है जस्ट टू पुट द वैल्यूज, राइट। सो f इक्वल टू a b मतलब दोनों 1 है, तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। a कॉम्प्लीमेंट b मतलब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, a b कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मतलब ये हो गया ये 0 1 2 और 3, राइट। तो ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। नाउ फॉर 3 वेरिएबल्स, ये 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल के लिए बनाया हुआ है जिसमें से 4 बॉक्सेस थे, इसकी वैल्यू 0 1 2 और 3। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस। फॉर 3 वेरिएबल्स अगर ऐसा कुछ तो भी है तो 3 वेरिएबल का जो टेबल बनता है वो बनता है ऐसा, राइट। सो a is supposed to be the most significant bit and bc is c is supposed to be the least significant bit, तो bc हम लोग यहाँ रख रहे हैं। तो इसके हिसाब से इनकी वैल्यूज कैसे रहेगी, a b और c। ये ट्रुथ टेबल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये ट्रुथ टेबल 3 वेरिएबल्स का बनाया हुआ है।
और इसमें ये फंक्शन के हिसाब से वी हैव ट्राइड टू पुट द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट, जो नहीं दिए हैं वहां पर हम लोगों ने 0 दिया। अगर आप यहाँ काउंटिंग करो तो ये काउंटिंग कितना होगा, नंबर सिस्टम के हिसाब से, डेसिमल नंबर के हिसाब से अगर मैं गिनता हूँ तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हो गए 8, राइट। अब जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ के मैप में, तो के मैप में देखो कैसे किस प्रकार से उन्होंने अरेंज किया है। सो BC ये 0 0 0 1 1 1 1 0, तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये कैसे रहेगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये 0 है, ये 1 है, इसके बाद यहाँ पर 2 है और उसके बाद 3 यहाँ, राइट। तो मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूंगा तो 0 1 2 लास्ट वाला, और फिर वापस यहाँ पर आएंगे तो ये 3, राइट। नीचे जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये लास्ट वाला जो बिट है वो 6 है, और उसके बाद वापस आ रहे हैं हम लोग 7 में। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यूज होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा अगर हम लोगों ने नंबर्स में गिना तो इनकी नंबर सिस्टम के हिसाब से इसकी वैल्यूज ऐसे आती है। हम लोग इसको यहाँ पर वैसे ही आप चेक कर सकते हो, BC 0 है, A 0 है, मतलब ये तीनों वेरिएबल वाला यहाँ पे रखा है। सो दिस इज 0। यहाँ पर BC 0 1 है और A 0 है, मतलब 0 1 यहाँ, ये 0 मतलब 1, तो ये वाली पोजीशन यहाँ हो गई। लास्ट वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है ये 1 0 वाली है, ये 4th इस पर आता है, 4th इस पे। सो ये 1 0 और ये 0, सॉरी ये 3rd इस पे आता है। सो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो सेंटर में आता है 3। सो हम लोग इसको लेते हैं 0 1 इधर 2 और उसके बाद यहाँ पर बीच में 3। सिमिलरली जब मैं नीचे स्टार्ट करता हूँ तो ये 4 और 5 यहाँ आता है, 6 इधर जाएगा और 7th वाला बीच में आएगा। रिमेंबर दिस। सो दिस इज फॉर 3 वेरिएबल्स। अब जब मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, मतलब B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट, जब B और C 0 0 है और A 1 है तो मेरी ये वाली पोजीशन हो गई, तो मैंने यहाँ A 1 प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर A B कॉम्प्लीमेंट C, राइट, तो B कॉम्प्लीमेंट मतलब B 0 होना चाहिए, C और A 1 होने चाहिए, राइट। तो C और A दोनों 1 होने वाली सिचुएशन कौन सी है, ये वाली 1 0 1, कौन सा है ये 4 और 1 5, राइट। तो 5th पोजीशन ये वाली हो गई। फिर उसके बाद ABC मतलब तीनों 1, तो ये लास्ट पोजीशन हो गई, दैट इज 7, वो यहाँ आ गई, तीनों 1 1 है। इसके बाद है 1 2 3 ABC कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट लेता है, AB दोनों 1 होने चाहिए और C 0 होना चाहिए, ये 6वां कॉम्बिनेशन है, तो 6वां ये वाला आएगा, तो ये भी 1 हो गया, राइट। सो ये चारों 1 हो गए, 1 2 3 4। लास्ट ऊपर वाले इसमें A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, मतलब जब C सिर्फ 1 है तो ये पोजीशन हो गई, तो AB C कॉम्प्लीमेंट मतलब सॉरी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C, ये सेकेंड वाली पोजीशन हो गई, तो ये 1, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ। लास्टली A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, मतलब A 0 होना चाहिए और C 0 होना चाहिए, B 1 होना चाहिए, तो वो 3rd पोजीशन हो गई 0 1 0, राइट। तो 0 1 0 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। आई गेस ये आपको समझ में आया कि टेबल में वैल्यूज कैसे पुट करनी है। इतना समझा क्या, इतना समझा है? हेलो, यस सर। समझा क्या? 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के बारे में बात की है हमने, 4 वेरिएबल्स भी अभी आने वाला है, राइट। तो हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बारे में समझा है। आपको ये बताया है कि वैल्यूज जो है वो कोई भी नाम से हो सकती है, जैसे यहाँ पर x और y लिया था हमने, और यहाँ पर हम लोगों ने a b लिया हुआ है, राइट। और 3 वेरिएबल्स के लिए टेबल इस प्रकार से आता है, बराबर। तो इतना हमको समझ में आया है। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्या स्टेप्स लेनी है, वो स्टेप्स हमको देखनी है। तो वो स्टेप्स क्या होगी, ये देखिए। वी कैन रिड्यूस फंक्शंस बाय सर्कलिंग वंस इन द के मैप। तो वंस जो है वो हम लोग उसको सर्कल करने वाले, याद रखिए सर्कल करेंगे उसको, राइट। और कभी कभी हम लोग कैसे करेंगे, पहले से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑक्टेट, मतलब 8 का ग्रुप बन रहा है, 8 वंस का ग्रुप बन रहा है, ये चेक करें।
सेकेंड इसमें हम लोग चेक करेंगे क्वाड्रेट का बन रहा है क्या, क्वाड का बन रहा है क्या। क्वाड बोले तो 4 का, राइट। अब ये 4 जो होने चाहिए वो कैसे, स्क्वायर में भी हो सकते हैं और स्क्वायर में हो सकते हैं, एक लाइन में हो सकते हैं, ऐसे लाइन में हो सकते हैं, ऐसे सीधे आड़े लाइन में, कॉलम में हो सकती है, रो में हो सकती है। ऐसा क्रॉस में नहीं होगा, याद रखना, क्रॉस में नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये चारों का 4 कॉम्बिनेशन, राइट। सो वी विल बी एनसर्कलिंग दिस, सो दिस वी विल कॉल इट एज क्वाड, राइट। अगर ये 8 1 1 रहते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, मतलब 8 का ग्रुप बन रहा है। तो हमको अभी ऐसे ग्रुप्स बनाने, सबसे पहले हमको देखना है 8 का ऑक्टेट का ग्रुप बनता है क्या, ये पहला। फिर उसके बाद चेक करेंगे 4 का क्वाड का ग्रुप बनता है, राइट। तो ये 4 का क्वाड यहाँ बन रहा है। फिर उसके बाद पेयर्स बन रहे हैं क्या, पेयर बोले तो 2 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर ये 2 का ग्रुप बन रहा है और ये 2 ग्रुप बन रहा है। हाँ, ओवरलैपिंग भी चलता है, याद रखना, ओवरलैपिंग भी चलता है, राइट। सो डोंट बॉदर अबाउट ओवरलैपिंग। सो यहाँ पे स्क्वाड बनेगा एक और यहाँ पे 2 ओवरलैप्स के 2 पेयर्स बनेंगे। और उसके बाद जो बच जाते हैं उनको हम लोग सिंगल इसमें लेते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोग उसको सिंगल सिंगल इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये है एक्चुअली पैटर्न उसको रिड्यूस करने के लिए, राइट। सो विल बी एनसर्कलिंग दोस। सबसे पहले क्या चेक करना है हमको, ऑक्टेट का ग्रुप बन रहा है क्या। फिर बाद में क्या चेक करना है, क्वाड का ग्रुप बन रहा है क्या, यानी 4 का ग्रुप बन रहा है क्या। 4 का ग्रुप आप चौकोन में भी बना सकते हो, रो में भी बना सकते हो, कॉलम में भी बना सकते हो। फिर उसके बाद हमको चेक करना है पेयर बन रहा है क्या। पेयर बोला तो क्या होता है, पेयर बोला तो 2 का ग्रुप, पर 2 का ग्रुप हम लोग आड़े में नहीं लेंगे, ये ऐसा क्रॉस नहीं लेंगे, हम लोगों को सीधा ही लेना, ऐसा लेना है या ऐसा लेना, राइट। तो वो याद रखो, पेयर। और उसके बाद जो बच जाते हैं वो सिंगल सिंगल वाले हम लोग लेंगे। तो एवरी सेल कंटेनिंग अ 1 मस्ट बी इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस, ठीक है। The largest possible power of 2 rectangle must be enclosed. The ones must be enclosed in the smallest possible number of rectangles, right? तो ये है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट होने के वजह से यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, राइट। क्वाड तो है ही नहीं और ऑक्टेट भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पेयर ढूंढेंगे। पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि ये एडजेसेंट है। अगर ये सीधे में होता तो हम लोग उसको पेयर बना देते और उसके बाद सिंप्लीफाई करते। तो इसका इक्वेशन सिंगल सिंगल बनेगा, यहाँ पर एक, ये, तो उसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन लिखा है, F इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, राइट। वैसे ही ये दूसरा फंक्शन, यहाँ पर पेयर बन रहा है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं, ये एक बन रहा है और ये इधर का एक बन रहा है, राइट। और हर इसमें एक एक एलिमेंट रिड्यूस होता है। अब अगर ये इक्वेशन बनती है तो आप देखिए, ये पेयर बन गया और ये भी एक पेयर बन गया, राइट। तो ऐसा पेयर बनाने का है, ऐसा एडजेसेंट का पेयर नहीं बनाना। अब इस पेयर में अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 चीजें दिखेगी आपको, ये वाला पेयर है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो उसके वजह से इसमें से एक टर्म कैंसिल होगी और इसमें से एक टर्म कैंसिल होगी, और दोनों में से हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म कम होने वाली है, ए वाली टर्म कम, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, राइट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी हैव ओनली बी, सो हमने यहाँ बी लिखा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये ऊपर वाला बी कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है, राइट। तो बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी गेट ओनली ए। So the function can be reduced as f equal to a plus b, right? ऐसा। अब 3 वेरिएबल्स का देखो, ये बनाया हमने 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, ये बना सबसे पहले क्वाड। अब जब हम लोग क्वाड बनाते हैं तो क्वाड में 2 वेरिएबल्स कम होते हैं, एक ही बचता, राइट। उसके बाद बनता है ये एक पेयर, तो एक पेयर में एक एलिमिनेट होगा। याद रखिए, क्वाड में 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट होते हैं, ऑक्टेट में 4 वेरिएबल्स, हाँ 4 वेरिएबल्स कम होते हैं, याद रखिए। तो ऐसा,
तो यहाँ पर एक क्वाड बन गया है, एक पेयर बन गया है और ये दूसरा पेयर बना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनसर्कल किया। अब उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास बनता है वो ये। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये BC जो है एलिमिनेट हो गया क्वाड के वजह से, 2 वेरिएबल कम हो गए। जैसे ही हम लोगों ने उसको एनसर्कल किया तो अब मेरे पास बचा फंक्शन पहले A बच गया। ये पेयर में सिर्फ एक वेरिएबल कम होगा तो यहाँ पर आप A और A कॉम्प्लीमेंट को कम कर सकते, बचता है B कॉम्प्लीमेंट C, राइट। सिमिलरली जो दूसरा पेयर बना हुआ है इसमें भी A और A कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यहाँ बचेगा B कॉम्प्लीमेंट C। सो हमारा ये इतना बड़ा जो इक्वेशन है, that equation can be easily reduced to this simple equation, F equal to A plus B complement C plus BC complement, right। यहाँ तक के अभी आपको समझ में आया, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। इसके बाद हम लोग उसको how to solve that equation, how to implement that equation। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब सर्किट्स बनाए थे तो उसमें आप लोगों को सर्किट डिजाइन कैसे करना बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये मैंने बताया था, राइट। तो उस हिसाब से आप अब नया सर्किट बना सकते हो, आपको जैसा आउटपुट चाहिए, पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस, वी हैव वेरी लेस टाइम टू गो। अगर आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चंस है टू आस्क मी, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, any questions? So I will just repeat it for another 2 minutes. Just hold for a second. We are studying Karnaugh maps, right? Simplification of digital circuits by using Karnaugh maps. हम लोग वो पढ़ रहे हैं. This is the background of that. This is the importance or advantages of using Karnaugh map, and these are some of the Boolean functions, and this is actually the K maps. The introduction of K-map. K-maps are actually the tables or squares where we are going to put the values of different equations. Then we can have different types of K-map arrangements like this, designs. This is for X and Y, 2 variables and their values. And these are some of the functions, and this is for the 3 variables. This is what we have studied, only to put the values by using the truth table. Accordingly, we are putting the table, and then we have to encircle the number of quad, octet, pair. So first we'll check octet, then we'll check the quad, that is 4, then that we'll check pair, and lastly we'll be keeping it as a single one, right? So in an octet, 3 variables are going to reduce. In a quad, there are 2 variables going to be reduced. In pair, 1 say variable is going to be reduced, and in single square, no element is going to be reduced, right? So these are some of the functions that we have studied. Here we are not able to make any pairs, so we have written directly the equations over here. So we are having 2 ones, this is 1 and the other one is 1, right? So the equation will be like this. But where we are having this pairs, then the equation can be reduced to a simple equation like F equal to A plus B. This was the initial equation. And now if you are able to see, this is a simple OR gate equation, right? So F is equal to A plus B. So that is the equation of OR gate. And for this 3 variables, we have done this for quad and then for 2 pairs. So the equation was this much, and then it has been reduced to F equal to A plus B complement C plus BC complement. I guess you have understood this. And if you have any queries, I will be happy to answer. Or else, thank you Manish, or else we can end this class. So do you have any questions? Okay. Okay, just university learning. Sorry. So we'll be seeing it in the next class. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care. Bye. See you soon.